Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's been a long time since I have recorded a video for MME Semester 1 mathematics lectures. So it's been a long time. So anyways, now we will be quite regular. Every second or every next day you will be seeing a video on the topics because your exams are also coming. In February, towards the end, you are going to have your exams. So keeping that in mind, we will be quite regular with our videos. So what are we going to do today? In today's video, we are going to talk about power function. Power function का मतलब क्या है? What does a power function mean? कोई भी एक रैशनल पावर के लिए अगर आप पावर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है एंड सम बेसिक निटी-ग्रिटीज ऑफ पावर फंक्शन वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट एंड so if you've already been watching my videos, thank you so much. Your support means a lot to me. And if you're new here, we make regular videos on mathematics, economics, and statistics. So if you are someone who's interested in that, please consider subscribing to my channel. So without wasting any more time, let's get into the video. So first things first, we want to talk about power function hota kya hai. So let me start by writing a function. Let's say the function is f of x equals to x raised to the power r. So this is the general form of a power function. अब यहाँ पे हमारे पास this particular r, it can take different kinds of formats. Like मान लीजिए कि if r is any integer, so r अगर एक integer है, ठीक है, so r could be positive, it could be 0 or it could be negative as well, right? So अगर आपका r value जो है positive integer ले रहा है तो यहाँ पे क्या meaning होगा? So let's say for example of a positive integer could be what? Let's say 2. So this function becomes fx equals to x square, right? अब इस फंक्शन का मीनिंग क्या है? इस फंक्शन का मीनिंग ये है कि जो भी आप x वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे उसको x मल्टीप्लाइड बाय x, जो भी इसकी पावर है उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, ऑल राइट. सिमिलरली लेट्स से इफ आई टेक fx एंड इफ आई टेक द r वैल्यू टू बी 0, ठीक है, सो यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 and x raised to the power 0 is 1. So anything power 0 becomes 1. ठीक है, so x raised to the power 0 जो है वो पावर फंक्शन इज अ कांस्टेंट पावर फंक्शन जहां पे वैल्यू जो है हमारी 1 हो जाती है. ठीक है, what could be the other example? The other case, the third case is when r value is negative. It's taking a negative integer value. ठीक है, so if it's a negative value, let's say it's -2. ठीक है, so what does this mean? This means I have x raised to the power -2. अब ये जो टर्म है x raised to the power -2, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग वेरी वेरी सिंपल. व्हाट डू यू डू? जो नेगेटिव पावर है, जो भी चीज नेगेटिव पावर में होती है, इट गोज टू योर डिनोमिनेटर. सो व्हाट हैपेंस? इट बिकम्स 1 by x raised to the power 2, राइट? एंड वी नो व्हाट दिस मीन्स. दिस मीन्स कि डिनोमिनेटर में क्या है? वी हैव x इंटू एक्स, जो भी इसकी पावर है दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड. जितना भी पावर है उतने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो. अगर यहाँ पे 3 होता तो वी वेर मल्टीप्लाइंग इट 3 टाइम्स. ठीक है, सो आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस इज, हमें ये समझ में आ गया कि x रेज टू द पावर r, दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ पावर फंक्शन. ठीक है, और अगर आपका r जो है इंटीजर वैल्यू लेता है, ठीक है, सो इंटीजर कुड बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. इन ईच ऑफ दोज कॉन्टेक्स्ट ये जो पावर फंक्शन है इसका मीनिंग क्या होगा वो हमने समझ लिया. ठीक है, बट इट डजंट नीड टू बी द केस कि हमारा जो r वैल्यू है it will always take integer value. It can happen कि it takes any real value, right? So it can take any real value. In this case, in the real and if it takes any real value, तो उस केस में इसका मीनिंग क्या होगा? What would be the meaning of x raised to the power r? उसका मीनिंग क्या होगा? We want to understand that. Okay, so that will be our major objective here. So यहाँ तक के concepts already हमें मालूम है
here and there, maybe in different other concepts, we might have come across this particular interpretation. But अब अगर let's say यहाँ पे r की वैल्यू जो है 2/3 है, ठीक है, सो आप अगर fx इक्वल्स टू x पावर 2/3 लिखो, तो ये जो x पावर 2/3 है, इसका मीनिंग क्या होता है? वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? ऑल राइट, सो what is my objective? Let's just write what my objective is. So my objective is, I want to understand that what is the meaning of fx raised to the power r if r is any, so my bad, actually I said for any real number, so we just want to restrict ourselves to understand what is the meaning when r is any rational number, ठीक है? सो जब अगर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों हो जाते हैं. वी डोंट वांट टू डिविएट टू दैट डिस्कशन, वी जस्ट वांट टू स्टिक टू व्हाट इट मींस व्हेन r इज एनी रैशनल नंबर, ठीक है? रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर व्हिच कैन बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? So what is the meaning of this particular function when r is any rational number, ठीक है? उस केस में इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है? चलो, तो इसको डिफाइन करने से पहले एक लेट्स सी वन थिंग. हमें पता है कि फॉर जनरल whenever we had r as an integer, we knew कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है होल्ड करती हैं. व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? we knew that a raised to the power, let's say r, and a raised to the power s. So a कोई भी एक नंबर है, उसकी पावर r है और a की पावर s है. If you have these numbers multiplied, हम लोग क्या कर सकते हैं? We used to do this. So a raised to the power r plus s, right? So this is generally we are talking when a is any number and r and s, all these power. So basically for integers हमने देखा कि ये सब properties hold करती है, ठीक है? Similarly हमें पता है a raised to the power r raised to the power s is nothing but a raised to the power rs, ठीक है? So knowing कि ये properties जो है generally हमारे ये सब इंटीजर केसेस के लिए होल्ड करती है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी मेरा फंक्शन हो, whatever function this is, it should also satisfies these properties because it's quite natural, ठीक है? So जो भी हमारी डेफिनेशन होगी इस तरीके के फंक्शन की, वो इस डेफिनेशन में या बेसिकली ये सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है? दिस इज द रैशनल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है इस तरीके के डेफिनेशन को समझने में. सो जो भी हमारी डेफिनेशन होगी वो ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए कि उसके लिए ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो, बिकॉज देन ओनली इट विल फील नेचुरल कि ठीक है, द वे थिंग्स हैव बीन डिफाइंड, ये जनरल जो रूल्स हैं हमारे पावर जो हम लोग इंटीजर्स के लिए भी देखते थे, इट मेक्स सेंस, ठीक है? तो ओके, सो ऑल राइट, सो कमिंग बैक, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा कि 5 एक नंबर है, सो लेट्स से x इज 5 एंड r वैल्यू इज 1/3, ठीक है? सो ये जो नंबर है 5 रेज टू द पावर 1/3, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे 5 इज 5 स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि आप 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? 5 रेज टू द पावर -2 का मतलब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो? 1/5 स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 1/5 को डिनोमिनेटर में 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है? इसी तरीके से ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या होगा? अब इसका मीनिंग जो है, अब वो क्या है? अब इसका मीनिंग जो है इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे ये सब सो नेचुरली वी फील दीज प्रॉपर्टीज शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है? सो देखो, अब ये जो नंबर है इसका मीनिंग क्या है कि दिस इज सच अ नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जिसको मैं पावर 3 अगर करूं तो दैट कम्स आउट टू बी 5, राइट?
सो बेसिकली देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि a रेज टू द पावर r टू द पावर s, ये अगर आप करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट a रेज टू द पावर r s, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास a है 5, r लेट से 1/3 है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, 5 रेज टू द पावर 1/3 तो मेरे पास है। अब मैं अगर इस पूरे की पावर जो है 3 ले लूं, ठीक है। So according to this condition, what should happen? This should be equal to 5 raised to the power 1/3 multiplied by 3. What is 1/3 multiplied by 3? It is nothing but 1. So 5 raised to the power 1. ठीक है. So 5 raised to the power 1/3 raised to the power 3 जो है, that is nothing but 5, right? So ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है? What is this number? सो ये नंबर एक्चुअली क्या है? दिस नंबर इज नथिंग बट अ सोल्यूशन टू एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन का सोल्यूशन है, और वो इक्वेशन क्या है? दैट इक्वेशन इज नथिंग बट, अगर मेरी इक्वेशन ये है x रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5, तो ये जो मेरा नंबर होगा, दिस नंबर, ये नंबर जो है इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, ठीक है। ये नंबर क्या है? दिस नंबर इज अ सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसका मतलब ये क्या है? वॉट एवर दिस नंबर इज, ये जो भी नंबर है, इसका मतलब क्या है कि इसकी अगर आप पावर 3 करोगे देन यू विल गेट अ नंबर विच इज 5, ठीक है। सो दिस नंबर 5 raised to the power 1/3 is the solution to the equation x raised to the power 3 equals to 5, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट क्यूब रूट ऑफ 5। सो x इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। अब सिमिलर तरीके से, सो दिस इज हाउ वी हैव गिवन मीनिंग टू दिस पर्टिकुलर नंबर। इस पर्टिकुलर नंबर को एक मीनिंग हमने दे दिया है कि ये नंबर क्या है? ये नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ 5 भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से, इसी तरीके से, अगर इफ a इज पॉजिटिव एंड ये जो n है हमारा, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं a रेज टू द पावर 1/n लिखूं, what will this number be? This is the unique positive number which, when raised to the power n, which when raised to the nth power, it will give us what? It will give us a. इसका मीनिंग क्या है? जैसे यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल क्या किया था, 5 रेज टू द पावर 1/3, इसी तरीके से एनी जनरल नंबर a विच इज पॉजिटिव, और कोई भी एक नेचुरल नंबर है n, ठीक है। a रेज टू द पावर 1/n का मीनिंग क्या होगा? दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है जिसको अगर रेज टू द पावर n कर दिया जाए देन यू आर गोइंग टू गेट a। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड व्हेन वी डिड 5 रेज टू द पावर 1/3, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट आर दे सेइंग कि a 1/n जो है, a रेज टू द पावर 1/n, इसकी पावर अगर आप n करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट a, ओके। हमने ये तो समझ लिया कि a रेज टू द पावर 1/n का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। ये सब हम लोग एक्चुअली कर क्यों रहे हैं? वी स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि मैं ये जो नंबर, ये जो मेरा पावर फंक्शन है, इसको कोई भी एक रैशनल नंबर के फॉर्म में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। आर एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या है? इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है।
सो हमने a रेज टू द पावर 1/n या फिर आप कह लो a रेज टू द पावर 1/q, वो मीनिंग तो समझ लिया। अब एनीथिंग रेज टू द पावर p जो है, व्हाट इज दैट? वो जो भी नंबर आपके पास आया उसको आप p टाइम्स आप p टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आवर इंटायर डिस्कशन बिकम्स। सो अब ये जो a रेज टू द पावर p/q है, अब इसका मीनिंग क्या होगा? अब यहाँ पे p इज एन इंटीजर, ठीक है, q इज अ नेचुरल नंबर। सो बिकॉज p/q एक नेगेटिव टर्म भी हो सकती है, तो हम p को एक इंटीजर बता रहे हैं, इट कैन टेक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, एंड q वी आर टेकिंग अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो एंड अभी हम लोग किस केस के बारे में बात कर रहे हैं? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऑल राइट, सो हमने क्या किया? a रेज टू द पावर p/q को समझना है, हम a रेज टू द पावर 1/n या फिर आप कह लो a रेज टू द पावर 1/q, इसको हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हमारा सिंपल सिंपल फंडा क्या है? अब आप अगर a रेज टू द पावर 1/n समझ चुके हो, तो आपको पता है कि a रेज टू द पावर 1/n का मीनिंग क्या है, राइट? उसके बाद जब आप इसका रेज टू द पावर p करोगे या फिर एनी अदर पावर, यू नो व्हाट इट मीन्स, बिकॉज इंटीजर का मतलब क्या होता है वो तो हमने देख लिया कि अगर पॉजिटिव है तो इस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इफ इट्स 0 इट्स 1, इफ इट इज नेगेटिव just reverse that, put it into the denominator and then multiply it by जितने भी टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो अब तो बेसिकली मेरे पास पूरा फंडा क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि a रेज टू द पावर p/q जो है, दैट इज नथिंग बट, आप क्या कर रहे हो? a रेज टू द पावर 1/q पहले समझ रहे हो कि ये क्या है, और फिर a रेज टू द पावर q क्या, 1/q क्या है, वो हमने समझ लिया। अब नाउ यू जस्ट हैव टू टेक अ पावर ऑफ p, right? So this is like the qth root of a and then you take a power p. This is what is the meaning. So इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से भी कि a का qth रूट निकालो और उसकी पावर p कर दो, ये होता है a रेज टू द पावर p/q का मीनिंग, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर somebody is saying 5 रेज टू द पावर 2/3, सो इसको किस तरीके से समझ सकते हो कि इट इज 5 रेज टू द पावर 1/3 पहले तो, फिर ये जो नंबर है ये हमें पता है कि ये नंबर x रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 5 का सोल्यूशन है, तो वट एवर दैट नंबर इज, इस नंबर का जो है स्क्वायर कर दो, दैट इज दिस नंबर, ठीक है। सो दिस entire huge long conversation was just to make you understand कि ये जो पावर 2/3 है इसका मतलब क्या है, इस पावर, सो बेसिकली पावर 1/3 का मीनिंग क्या है, पावर 2/3 का मीनिंग क्या है, पावर डेसिमल में होने का मतलब क्या है, ठीक है। उसका मतलब है आप उसको रैशनल नंबर के टर्म्स में देखो। सो आप क्या कर रहे हो? यू आर टेकिंग अ क्यूब रूट, क्यूएथ क्यूब रूट एंड देन टेकिंग अ पावर ऑफ पी, ठीक है। इस तरीके से आप डाइसेक्ट करके इसको समझ सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, सो ओके, अभी तक हमने जो है ए रेज टू ए व्हेन इट इज अ पॉजिटिव नंबर सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन करा है, ठीक है। बट ए नेगेटिव के टर्म्स में आप किस तरीके से इसको समझोगे? सो इट्स अ स्पेशल केस, सो जनरली इट्स डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, बट when is it defined for negative numbers, when is it defined for a negative? So what is that? So अगर q is odd, सो जो आपका क्यूब रूट है, सॉरी जो भी आपका क्यूएथ रूट है, ठीक है, क्यू की वैल्यू ऑड है, माने मतलब लेट्स से हम लोग 5 रेज टू द पावर 1/3 समझ रहे थे, सो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या थी? 3, तो 3 इज एन ऑड नंबर। सो जब भी क्यू ऑड नंबर है, ठीक है, एंड p इज एन इंटीजर, ठीक है, ये जो a रेज टू द पावर p/q जो है, दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a, ठीक है, दिस कैन बी डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ k, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ a।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि -8 रेज टू द पावर 1/3, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बेसिकली क्या है कि मुझे एक ऐसा नंबर दे दो जिसको मैं क्या करूं। अब ये जो है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? सो दिस इज लाइक अ क्यूब रूट, राइट? सो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, ठीक है? दिस इज नथिंग बट -2 इंटू -2 इंटू -2 रेज टू द पावर 1/3, राइट? सो इट्स लाइक -2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है एंड उसकी पावर 1/3 है, राइट? सो according to this natural property that we should have, this property, what can I say? I can say that these should get multiplied. And what do I have? -2 raised to the power 1. So -8 raised to the power 1/3 is nothing but -2. ठीक है? सो एक चीज का सिर्फ आपको ध्यान देना है। सो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट तो कर सकते हो, बट while you are defining it for negative a values, there is one thing that you have to keep in mind. What is that? So while defining it for a negative, ये जो भी आपका p/q जो है, जो भी आपका p/q नंबर है, दिस p/q नंबर, ये प्रॉपरली जो है, इट शुड बी रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म्स. So the p/q number should be reduced to lowest term. Otherwise, there are chances that we might see some contradictions. For example, what am I talking about? किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो -8 रेज टू द पावर 1/3 है, हमने देखा दिस इज नथिंग बट -2, ठीक है? अब जो है इसको मैं -8 रेज टू द पावर 2/6 भी लिख सकती हूँ, राइट? सो अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता? इसका मीनिंग देखो, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, -8 raised to the power 2 raised to the power 1/6, right? I can write it like this, right? क्योंकि because of the natural properties like these, इस तरीके से मैं इनको बाइफरकेट कर सकती हूँ, ठीक है? So if I do that, what do I get? -8 raised to the power 2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी व्हाट? -8 इंटू -8. सो वो कितना होगा? वो होगा 64, ठीक है? पॉजिटिव. उसकी पावर अगर आप 1/6 लोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? कि वो कौन सा नंबर है जिसको what are you going to get basically? So this is nothing but 2 raised to the power 6, right? Raised to the power 1/6. So you are going to get 2, right? But initially हमने देखा था कि that the answer is -2, but here what we are getting is 2, ठीक है? सो जब भी आप एक नेगेटिव नंबर के साथ, नेगेटिव ए के साथ डील कर रहे हो, मेक श्योर कि ये जो भी आपके पावर्स हैं, ये लोएस्ट टर्म्स में, दे आर इन देयर लोएस्ट बेसिकली टर्म्स, ताकि you don't get any contradiction, because if they are not in their lowest term, there are chances कि आपका जो आंसर है, you might start getting some contradictions, and we don't want to do that, right? So you just have to keep in mind this particular idea, ठीक है? So now just trying to bring this whole conversation together. So हमने अभी क्या बात करी है कि जो भी हमने definitions की बात की है, इस definition के हिसाब से a raised to the power p/q, या जो भी हमारा पावर फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है कि आप a जो भी नंबर है उसका 1/q पावर ले रहे हो, और हमने अभी देख लिया है कि 1/q पावर का मीनिंग क्या होता है. सो वी जस्ट डिस्कस्ड दैट, राइट? कि 1/n, a रेज टू द पावर 1/n का मीनिंग क्या होता है? दिस इज नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑफ x रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इट्स अ नंबर जिसका पावर अगर आप n करोगे, ठीक है, जिसको n टाइम्स, ये जो नंबर है इसको अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपस में, then you're going to get a, ठीक है? That's the meaning.
सो अब ये जो है इसका मीनिंग क्या है, a raised to the power 1 by q raised to the power p. That is one way in which you can understand it. Based on situation, you can also do it like this. Multiple times we have done it like this. ठीक है. So अब इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ कि this is nothing but the qth root of a raised to the power p. ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि a raised to the power p उसका qth रूट. सो जब आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है, लेट्स से 25 का, तो वी जस्ट राइट इट लाइक दिस. अगर 25 का क्यूब रूट निकालना है तो वी राइट 3. अगर इसका फोर्थ रूट निकालना है तो वी विल राइट इट लाइक दिस. इसी तरीके से हमें अगर क्यूएथ रूट निकालना है तो वील राइट क्यू हियर. दैट्स द टर्मिनोलॉजी. ठीक है. ऑल राइट. सो तो जब भी आपको ये निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, आइदर यू कुड फर्स्ट सॉल्व a raised to the power 1 by q and then do a power p, or you can do a raised to the power p and then do a power 1 by q, whichever one is easier for you. आप based on the situation you can do that. ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये जो 25 रेज टू द पावर मान लो 3/2 है, सॉरी 3/2. सो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले 25 का रेज टू द पावर 1/2 ले लो एंड देन उसका क्यूब कर दो. ठीक है. दैट इज वन वे. और यू कुड डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो कि आप 25 का पावर 3 कर लो. ठीक है. और फिर जो है इसका 1/2 पावर कर लो. ठीक है. तो 25 का पावर 1/2, 25 का जो रूट है वो क्या होगा 5, और 5 की पावर जो है 3 करनी है आपको. दैट इज 125. ठीक है. सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करना है, 25 रेज टू द पावर 3 करनी है. तो 25 रेज टू द पावर 3 इज 25 into 25 into 25. So this is 625 into 25. So this will be nothing but 15625 raised to the power 1/2. तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे then you are going to get 125 only. So whichever way you feel comfortable based on the situation, you can either first take the power 1/q and then do power p, or you can first do power p and then do power 1/q. Based on your situation, you can do it any way you want. Okay. So all right, so some general properties that you should remember is आप किसी भी तरीके से पावर्स को, लेट्स से यू हैव 4 numbers a b c and d and they are all raised to the power p. So you can do what, आप अपने पसंद से कोई भी कॉम्बिनेशन में चीजों को क्लब करके उनकी पावर्स ले सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी लाइक कि आप ए बी रेज टू द पावर पी कर रहे हो एंड देन सी डी रेज टू द पावर पी कर रहे हो, एंड देन यू कैन मे बी गो इवन और ग्रैनुलर लेवल पे जा सकते हो लाइक दिस. सो लाइक एनी कॉम्बिनेशन वर्क्स. ठीक है. So that is one thing that you should remember. Other thing that you should remember is काफी बार बच्चे जनरली चीजों में मिस्टेक कर देते हैं. जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है कि x plus y raised to the power 2. ठीक है. Some people think it's x square plus y square, but it's not. It's x square plus y square plus 2xy. So similarly, because even in this smaller case this doesn't hold, generally आप कभी भी इस तरीके से चीजों को नहीं कर सकते हैं. किस तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेट्स से आई राइट x plus y raised to the power alpha. ठीक है. दिस इज जनरली नॉट इक्वल टू x raised to the power alpha plus y raised to the power alpha. So you just have to keep this in mind because many people make such mistakes. बहुत सारे लोग इस चीज को they think that this is how you can write it. ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर पावर आप इंडिविजुअली जो है you can take it inside, but you can't do that. Generally you can't. Maybe in some special cases for some particular values of x and y you can, otherwise you can't. Okay, so you should just remember that. All right, apart from that, okay, let's say some small things.
I think majorly we are done with what is the basic meaning of x raised to the power r when r can be any rational number. So integers के लिए क्या meaning होता है हमने देख लिया, ठीक है. और when you have a rational number, any number p, any rational number can be in the form of p by q. और p by q का meaning क्या होगा, कोई भी एक नंबर की पावर p by q का मतलब क्या होगा वो हमने समझ लिया, ठीक है. सो लेट्स से 1/3 है, उसका क्या मीनिंग है 2/3. तो पहले आप क्या कर रहे हो, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पहले आप रूट ले रहे हो, क्यूएथ रूट ले रहे हो, एंड देन यू आर टेकिंग अ पावर पी. और यू कैन अंडरस्टैंड इट कि पहले आप पावर पी कर रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग अ क्यूएथ रूट. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट could be the possibilities when a is positive or negative. So जब negative होता है, that only works when your q value is an odd number, otherwise it doesn't. Only in that case it works. And yeah, then we also looked at a few general things that you need to understand. So don't make such mistakes, don't make these mistakes. And I think, yeah, these were the basic concepts related to power function. In our next lecture, what are we going to do? We will look at some of the examples of graphs of power function. So how does a graph of x power 3 looks like? How does a graph of x power 1/3 looks like? So I'll show you some examples of graphs, which will be very helpful for you to understand. And then the other lectures will keep coming, which is on exponential function and logarithmic function. And yeah, I think that's it for today's lecture. I will see you super soon in our next video. And if you liked the kind of videos that I'm making, so please consider subscribing to my channel and let me know in the comments if you have any other feedback or suggestions for videos. So we will be quite regular from now on because the exams are in full force. So we will also try and be in pace with that. So thank you so much. I wish you a happy new year to everyone, and have a good night. Thank you so much.